न्यू इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऐड करना हो या फिर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल पॉइंट की शिफ्टिंग करना हो, व्हाट विल बी द कॉस्टिंग फॉर दैट। या फिर आप रेनोवेशन करा रहे हो या न्यू होम इंटीरियर्स करा रहे हो, तो पूरे घर का इलेक्ट्रिकल कॉस्टिंग आप कैसे कैलकुलेट करो। किसी से कोटेशन ले रहे हो बाहर से, तो आप क्रॉस चेक कैसे करोगे कि यार उसने जो कॉस्ट आपको दिया है वो सही है कि नहीं, वो ज्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा है। सो दिस इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर फॉर इलेक्ट्रिकल कॉस्टिंग, बी इट मटेरियल कॉस्टिंग, बी इट लेबर कॉस्टिंग। आई एम गोना गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। नाउ ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो है वो आपके वॉल पे भी हो सकते हैं और आपके सीलिंग पे हो सकते हैं। सीलिंग पे हुए तो वो लाइट पॉइंट्स होंगे। आई विल टेल यू द टेंटेटिव कॉस्टिंग फॉर दिस एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द कॉस्टिंग फॉर इलेक्ट्रिकल्स ऑल बाय योरसेल्फ एंड यू कैन easily cross check the quotation that you are taking from outside. One important thing I want to tell you is the costing that I'm going to give you is including the labor cost, material cost and installation cost. जो costing में दूंगी उसमें क्या क्या चीजें included होगी, wiring included होगी, conduit piping included होगी, chipping of the wall and replastering of the wall. All these things will be included in the costing that I'm going to give you. Now I will tell you just one figure. I'm not going to give you the breakup of everything because अगर मैं breakup दूंगी then it will become complicated. Complicated होगा then confusion क्रिएट होगा एंड नोबडी लाइक्स कॉम्प्लिकेशंस, राइट, एंड नोबडी वांट्स कंफ्यूजन। सो इसलिए मैं एक कॉस्ट आपको दूंगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार एक पॉइंट को शिफ्ट करने का इतना कॉस्ट लगता है, एक न्यू पॉइंट ऐड करने का इतना कॉस्ट लगता है। ये कॉस्टिंग जो मैं आपको दे रही हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि यही कॉस्टिंग आपको हर जगह लगेगी। ये मैं एक रेंज आपको बता रही हूँ, इस रेंज के बीच में आपका ये प्राइस जो है वो फॉल करेगा क्योंकि सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप मुंबई में हो तो आपका कॉस्ट डिफरेंट होगा, अगर आप बैंगलोर में हो तो आपका कॉस्ट डिफरेंट होगा, या फिर आप कभी कहीं छोटे सिटी में या टाउन में रहते हो, आपका कॉस्टिंग definitely different hoga. So it depends on that. I'm just giving you the range and idea. That is why I'm saying that I'm going to give you a tentative costing for this thing. Also in the end of the video, I will give you the names of the brands of the material that are used in this costing. So you will have a brief understanding of what exactly are the things that are being used. The name of the brand that I'm going to give you is quite common, famous, easily and readily available in the market. So this video is going to give you all the information you need to know about electrical costing for either renovating your house or new home interiors. I'll keep this video very short and simple for your easy understanding. So do not miss anything from this video. I'm going to be sharing tips and tricks in between the video. So I want you guys to watch the entire video. Do not miss it. And I hope you guys find this video informative and helpful. Hi guys, this is Vaishali and welcome back to my YouTube channel. I am an architect and interior designer and on this channel I make videos related to interior designing and architecture. So brief तो मैंने दे ही दिया है कि मैं किन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ. Before starting the video, if you're new here, watching my video for the first time, make sure you subscribe. Let's get started with today's video. So we will start with the shifting of electrical points first. What is the cost of shifting an electrical point in both renovation and fresh home interiors? So we are talking about relocating an electrical point either on the wall or on the ceiling. So as I've mentioned, this costing you can consider as a tentative costing. This is not the exact costing that you will get everywhere. इसमें 10% आपका कॉस्ट जो है या तो कम हो सकता है या 10% जो है वो आपका ज़्यादा हो सकता है. Now let's actually talk about the relocation of electrical points. इसमें 3 कैटेगरीज होती है, 3 कॉस्टिंग मैं शेयर करने वाली हूँ. The first one is shifting of a 5 ampere switch socket. ना इसका कॉस्ट जो होगा वो 750 रुपीज़ होगा. ना 750 जो है वो मैं मिड रेंज बता रही हूँ. ये आपका 400 से स्टार्ट भी हो सकता है एंड देन 900 तक भी जा सकता है. बट इन बैंगलोर 750 is what they cost. Now in this price, what all is included? Your wiring is included, your chipping of wall is included, conduit piping is included and replastering of the wall is included. They'll charge you 750 rupees per electrical point for the shifting of existing point. Second category is the shifting of सीलिंग पॉइंट्स. नाउ सीलिंग पॉइंट अगर शिफ्ट करना है तो उसका प्राइस डिफरेंट होगा. अब इसका एक पेरीमीटर होता है, एक रेडियस के अंदर अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, 5 मीटर का एक रेडियस होता है. अगर 5 मीटर के रेडियस के अंदर अगर आप सीलिंग पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो तो उसका कॉस्टिंग आपको पड़ेगा 1000 रुपीज़ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट. नाउ इसका मिनिमम आपको 600 हो सकता है, मैक्सिमम आपको 1200 पड़ सकता है. बट मिड रेंज जो मैं बता रही हूँ वो है 1000 रुपीज़ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट. शिफ्टिंग ऑफ 15 एम्पियर स्विच सॉकेट. 15 एम्पियर स्विच सॉकेट अगर आपको शिफ्टिंग करनी है और उसका रेडियस अगर 1 मीटर के अंदर है तो इसका भी कॉस्टिंग आपको लगेगा 1000 रुपीज पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट. अगर 1 मीटर से डिस्टेंस आपका ज्यादा हो रहा है देन द कॉस्ट विल डबल. नाउ ये हो गया 3 कैटेगरीज मैंने बताई, 3 टाइप के इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स अगर आपको शिफ्ट करना है तो उसका कॉस्टिंग क्या होगा. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये अपने सुपरवाइजर को भी सजेस्ट करना है कि वो भी इस चीज का कॉन्स्टेंटली चेक करते रहे, ध्यान रखते रहे कौन सी चीज है वो. नाउ फर्स्ट पॉइंट, जो GI बॉक्सेस होगा
उसकी जब फिक्सिंग हो रही होगी तो उसका प्लेसमेंट देखना है कि एकदम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो वॉल के अंदर प्रॉपरली अलाइन हो रहा है कि नहीं, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वॉल। एंड उसका जो लेवल होना चाहिए वो आपके प्लास्टर वॉल से 2 से 3 mm जो है वो अंदर होना चाहिए, बिकॉज आपका स्विच बोर्ड का प्लेट आएगा, राइट? सो दैट शुड अलाइन विथ योर प्लास्टर ऑफ द वॉल। अदरवाइज वो आगे पीछे दिखेगा, डिसअलाइन दिखेगा, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। सो दिस थिंग यू हैव टू आस्क द सुपरवाइजर टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट सो दैट नथिंग गोज रॉन्ग ऑन साइट। नाउ सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जो स्विच सॉकेट का पोजीशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे कि मैंने मेंशन किया। एंड थर्ड चीज, आप कॉन्ड्यूट पाइप्स जो है वो उसकी फिलिंग करने से पहले, उसको कंसील करने से पहले आपको प्रॉपर कनेक्शन जो है वो टेस्ट आउट करना है, उसको चेक करना है कि कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, सो दैट फ्यूचर में कुछ एक्सीडेंट्स ना हो। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और उसके कॉस्टिंग के बारे में हमने बात की। नाउ इफ यू आर एडिंग अ न्यू इलेक्ट्रिकल पॉइंट, अगर आपको पूरा न्यू इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऐड करना है तो उसके लिए तो आपको एक नया कनेक्शन ही देना पड़ेगा, नई वायरिंग करनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, दैट वी विल डिस्कस नाउ। न्यू इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स ऐड करने में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। तो इसका मैं आपको एक रेंज दूंगी, मैं आपको पूरा हर पॉइंट का प्राइस नहीं बता सकती बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो जो है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बट आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक इन विच बेडरूम वाइज और स्पेसेस वाइज, एरियाज वाइज आई विल गिव यू द कॉस्टिंग फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। क्योंकि न्यू इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में क्या तो वो आपका AC का पॉइंट हो सकता है, या फिर आपका वो लाइट का पॉइंट हो सकता है, या फिर आपका सीलिंग लाइट का पॉइंट हो सकता है, या फिर फैन आपको एक्स्ट्रा ऐड करना उसका पॉइंट हो सकता है, टीवी का पॉइंट आपको ऐड करना वो डिफरेंट हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड एंड सबका प्राइसिंग जो है वो अलग अलग होता है। बट मैं एक रेंज बता देती हूँ कि रेंज क्या रहता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है। सो आपका जो रेंज है वो स्टार्ट होता है 400 रुपीज़ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट से, और ये आपका एंड होता है 3500 रुपीज़ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट। जो 3500 रुपीज़ जो है वो आपका AC पॉइंट अगर आप दे रहे हो तो उसका कॉस्टिंग आपको 3500 रुपीज़ लगता है, बिकॉज उसका जो है वाटेज अलग होता है, उसकी वायरिंग डिफरेंट होती है, तो उसका कॉस्टिंग वहाँ पे बढ़ जाता है। नाउ एज आई मेंशन्ड आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो प्लीज लुक आउट फॉर दैट वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब सो दैट यू डू नॉट मिस दैट वीडियो। ऑलराइट, सो वी टॉक्ड अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ शिफ्टिंग अ इलेक्ट्रिकल पॉइंट और एडिंग अ न्यू इलेक्ट्रिकल पॉइंट। नाउ आई विल गिव यू द नेम ऑफ सर्टेन brands that are being used for the wiring and for the switchboard and switch plates. Okay, so you will have a brief understanding of everything कि कौन से ब्रांड के वायरिंग यूज होती है, कौन से ब्रांड के स्विच बोर्ड्स यूज कर सकते हो, तो आपको भी आइडिया रहेगा हर चीज के बारे में। So you can cross question your interior designer or the design firm that you're hiring or contractor or builder. You'll have something, you'll have some knowledge, right? So let's talk about this now. Now ये जो कॉस्टिंग मैंने आपको बताई, इसमें एक और चीज इंक्लूडेड रहेगी, इसमें आपके स्विच बोर्ड और स्विच प्लेट का जो कॉस्टिंग है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। और इसमें जो ब्रांड, मैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड ब्रांड कंसीडर कर रही हूँ जो कि आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे ब्रांड का स्विच प्लेट या स्विच बोर्ड लगाना है तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। इन दैट केस अगर आप काफी हाई एंड लगाते हो तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। बट जो स्टैंडर्ड जो मैंने आपको रेंज दिया है कॉस्ट का, उसमें आपका जो ब्रांड इंक्लूडेड होता है स्टैंडर्ड वाला वो है एंकर। एंकर के जो स्विच बोर्ड प्लेट्स आती है वो इसमें इंक्लूडेड मैं कंसिडर कर रही हूँ। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्ड्यूट पाइप्स, तो उसमें आप कोई सा भी ब्रांड्स ले सकते हो, उसमें ऐसा कोई ब्रांड का कुछ पर्टिकुलर है नहीं, बिकॉज दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। सो वो उसमें आप कोई भी ब्रांड के साथ में जा सकते हो और उसका प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा नहीं होता है और वो सेम रेंज में ही लाई करता है सारे ब्रांड्स का। ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज व्हाइल यू आर डूइंग द कंडीटिंग ऑन द वॉल, जस्ट मेक श्योर दैट इट इज अगेन अलाइंड विद द वॉल प्लास्टर। मतलब वो स्पेस प्रॉपर रहना चाहिए जिससे जब पेंट होगा, जब फिलिंग होगी, रीप्लास्टरिंग होगी तो वो पैच वर्क ना दिखे। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू टेल द सुपरवाइजर टू टेक केयर ऑफ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द brand names of wires. There are different brands of wires and cables available in the market. So I'll just tell you 3 brand names which is quite popular and you easily get those in the market. First is Havells, second is Polycab, and third is Finolex. So these are the 3 main brands that is easily available in the market. Now while I'm talking about the wires and cables, one very important thing that I want to share with you is while selecting the wire, go with FRLS and not FR. Now what is FR and FRLS? FR is fire resistant wire and FRLS is fire resistant low smoke wire. Fire resistant wire जो होगा when there is an accident in your house, it will just burn, start the fire immediately. While FRLS क्या होगा, अगर आपके कुछ ऐसे मिसहैप हो भी रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है घर में, वो डायरेक्टली जलेगी नहीं। ओके, इट विल टेक सम टाइम, सो दैट विल अलर्ट यू बिफोर हैंड दैट देयर इज समथिंग बर्निंग, यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ स्मेल ऑफ दैट, सो यू विल बिकम अवेयर अबाउट दैट सिचुएशन दैट इज गोइंग टू हैपन। सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली रन अवे टू योर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, cut off the power directly from there, and that can prevent you from any accident to happen in your house. So just keep that thing in mind and go with FRLS. Price difference बहुत ज़्यादा नहीं होता है, price difference बहुत ही कम होता है, I think
100-200 रुपए का प्राइस वेरिएशन रहता है. So rather than selecting FR wire, select FRLS wire. Okay, so make sure you ask for this thing. I have given you the costing for shifting of electrical points and adding new electrical points as well. Now you can easily calculate the electrical costing for your entire house. You can easily cross check the quotation that you're getting from vendors. So I hope you got some clarity from this video and you find it informative and helpful. If you did find this video informative and helpful, then make sure you share it with your friends and like this video, subscribe to the channel. And that's it for this video, guys. I will see you very soon in my next video. Till then, bye.